السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں خضر۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کے باعث حبس کی شدت میں کمی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 5 اگست تک بادل برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں محمد عاقب سے۔ جی عاقب۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کریں تو صبح سے ہی موسم جو ہے وہ بڑا شاندار ہے اور حبس کی شدت میں کافی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر کا ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ فیلڈس لائک جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ صبح سے ہی کافی اچھا موسم ہے، کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں بوندا باندی جاری ہے اور اس وقت بھی جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ 5 اگست تک جاری رہے گا جو انہوں نے پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ جی شکریہ عاقب آپ کا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ۔ مین بولیورڈ گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم اور لبرٹی چوک ایمرجنسی ریلیف کیمپ پر نکاسی آب آپریشن کا معائنہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی شہر کے تمام انڈر پاس اور ہاٹ سپاٹ پوائنٹس کو کلیئر رکھنے کی ہدایات، بولے تمام ڈسپوزل سٹیشنز، پمپنگ مشینری اور جنریٹرز کو مکمل فعال رکھا جائے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ۔ مین بولیورڈ گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم اور لبرٹی چوک ایمرجنسی ریلیف کیمپ پر نکاسی آب آپریشن کا معائنہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی شہر کے تمام انڈر پاس اور ہاٹ سپاٹ پوائنٹس کو کلیئر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت بوسیدہ چھتوں کی مرمت کے لیے قرضے کے اعلان کا معاملہ مونسون کا آغاز ہوئے 20 روز سے زائد گزر چکے متاثرہ شہری امدادی قرضوں کے منتظر۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پالیسی مکمل ہے، قرضوں کی تقسیم کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ مانسون بارشوں کے دوران کمزور اور خستال چھتوں سے لاحق خطرات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے بعد شہریوں نے آن لائن درخواستیں جمع کروانا شروع کر دی ہیں، تاہم قرضوں کی عملی فراہمی کا مرحلہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ مانسون کا آغاز ہوئے 20 روز سے زیادہ ہو چکا ہے، اب تک کسی بھی درخواست گزار کو مرمت کے لیے قرض جاری نہیں کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے اسکیم پر عمل درآمد کی ذمہ داری محکمہ ہاؤسنگ اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو سونپی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ قرضوں کی پالیسی مکمل کر لی گئی ہے، آن لائن پورٹل پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور قرضوں کی تقسیم کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں کالا نچلے درجے کا سیلاب مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ متوقع بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں اور ان سے ملحقہ نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لاہور، راولپنڈی، کوچاوانا، کوچا، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح نارمل ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں بھی پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جاپا نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شہر میں ہونے والے بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر۔ بارش کے باعث لیسکو کے 35 فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ سی ای او لیسکو کی فیلڈ سٹاف کو بحالی کے تمام کام حفاظتی اصولوں اور ایس او پیز کے مطابق انجام دینے کی ہدایت۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر۔ بارش کے بعد لیسکو کے 35 فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈرز ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ سی ای او لیسکو کی فیلڈ میں سٹاف کو بحالی کے تمام کام حفاظتی اصولوں اور ایس او پیز کے مطابق انجام دینے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا
तरसीली निज़ाम मुतासिर हो चुका है। बारिश के बायस लेस्को के 35 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। वेलकम बैक। सूफी बुजुर्ग हज़रत अली हजवेरी के 983वें उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए दूध की सबीलें और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त, वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, इस दफ़ा हज़रत अली हजवेरी अल मरूफ दाता दरबार का 983वां उर्स है, जिसका आज दूसरा रोज़ जारी है। जबकि आज का आगाज़ जो है वो महफिल समा से किया गया, जिसमें मशीर वज़ीर आला अली डार ने भी शिरकत की। जबकि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये दाता दरबार का बावर्ची खाना है और यहाँ पर 3 दिन वसी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ के इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 400 के करीब देगें हैं जो एक वक्त में पकाई जाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो खाने की अशिया हैं वो शामिल होती हैं और ये दिन भर और रात भर ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो बावर्ची खाने में होते हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि एक वक्त में कितनी देगें हैं और क्या क्या जो खाने हैं वो तैयार होते हैं, और उसके अलावा 3 दिन में तकरीबन कितनी देग तैयार होती है? ये टोटल तकरीबन 1000 के करीब देग है जो तैयार होगी। उसके अलावा जो डेली बेसिस पे हमारा जो तैयार होता है लंगर, उसमें हलीम होती है और आलू गोश्त होता है या कौरमा वगैरह होता है, और उसके अलावा हलवा भी होता है। ठीक है जी, ये 3 दिन में मुसलसल चलेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि तकरीबन एक दिन में जो है वो 1000 के करीब देग जो है यहाँ पर तैयार होती है। जबकि ये अगर लंगर की बात की जाए तो ये लंगर महकमा औकाफ की जानिब से और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर निगरानी जो है उसका इंतज़ाम किया गया और यहाँ पर लंगर का जो है वसी इंतज़ाम किया गया और ये तकरीबन तीनों दिन जो है वो 24 घंटे वक्फे से जारी रहता है। जबकि अगर बात की जाए उर्स की तो आज दूसरा रोज़ है। आज रात इशा के बाद जो है वो मुख्तलिफ कुरान खाने के बाद दुआएँ की जाएंगी, जबकि कल जो है वो इसका इख्तिताम होगा और कल रात को जो है वो इख्तितामी दुआ की जाएगी। जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दाता दरबार को चारों जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो चारों अतराफ मौजूद है जो बाकायदा चेकिंग के बाद ज़ायरीन को अंदर आने दे रही है। जी शुक्रिया हमजा आपका। हज़रत अली हिजवेरी के उर्स के बाइस लाहौर में कल मकामी तातील LDA सिटीज़न सहूलत सेंटर कल बंद रहेगा। आपको बता रहे हैं हज़रत अली हिजवेरी के उर्स के बाइस लाहौर में कल मकामी तातील का ऐलान किया गया है। LDA सिटीज़न सहूलत सेंटर कल बंद रहेगा। हज़रत अली हिजवेरी के उर्स के बाइस लाहौर में कल मकामी तातील का ऐलान किया गया है। और हज़रत अली हजवेरी के सालाना उर्स और चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहर भर में AI बेस्ड स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम के ज़रिए निगरानी का अमल मज़ीद मौसर बना दिया गया है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हाई अलर्ट। शहर के हसास मुकामात दरबार हज़रत दाता गंज बख्श जुलूसों के रास्तों और दीगर अहम मुकामात पर जदीद AI बेस्ड स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुल्हिका इलाकों में जदीद कैमरों की मदद से हर सरगर्मी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मसनूई जहानत पर मुबनी सिस्टम के जरिए मशकूक अफराद और गैर मामूली सरगर्मियों की बर निशानदेही को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहमी तावन से ज़ायरीन और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल तावन करें। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में जायका के वफ्द का दौरा। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट और DG डॉक्टर लुबना नज़ीर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। जापानी वफ्द ने जापानी ज़ुबान में इस्तकबाल पर खुशी का इजहार किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सारा उमर ने पाक जापान ताउन को सराहा। जायका वफ्द का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में ताउन बढ़ाने का ऐलान। चेयरपर्सन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जायका के तवील ताउन को भी सराहा। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में जायका के वफ्द का दौरा। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट और DG डॉक्टर लुबना नज़ीर ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। जापानी वफ्द ने जापानी ज़ुबान में इस्तकबाल पर खुशी का इजहार भी किया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सारा उमर ने पाक जापान ताउन को सराहा है।
DC लाहौर ने अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए फील्ड में मुतहरिक। दाल मूंग की कीमत 345 से कम होकर 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बेसन की कीमत 230 से कम होकर 210 रुपये फ़ी किलो हो गई। दूध 170 रुपये फ़ी लीटर और दाल माश छिलके वाली 360 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब नई कीमतों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप बता रहे हैं कि DC लाहौर ने अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए फील्ड में मुतहरिक। दाल मूंग की कीमत 345 से कम होकर 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बेसन की कीमत 330 से कम होकर 210 रुपये फ़ी किलो हो गई है। दूध 170 रुपये फ़ी लीटर और दाल माश छिलके वाली 360 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। लाहौर में 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया है। ओपन मार्केट में गंदुम असखुद 4650 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला कम सप्लाई में 1125 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गंदुम महंगी होने से लाहौर में 10 किलो थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम है। लाहौर में योमिया 10 किलो आटे की 2,20,000 डिमांड है। 15 किलो थैला 2150 रुपए में असखुद फरोख्त होने लगा है। सुबह भर में आटा महंगा होने से तनूर पर रोटी 15 से 25 रुपए तक फरोख्त हो रही है। रायविड, मुल्तान रोड, जौहर टाउन, फैसल टाउन, वापना टाउन, वलेंशिया, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में रोटी 22 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। अनारकली, मॉल रोड, इस्लामपुरा, संतनगर, बागबानपुरा और शाहतरा में भी रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। जिला हुकाम के मुताबिक रोटी 14 रुपए में हर सूरत फरोख्त होगी। महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। खुद साख्ता महंगाई आवाम के लिए मुसीबत बन गई है। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत सरकारी रेट लिस्टों के बरअक्स फरोख्त की जाने लगी हैं। खरीदार कहते हैं अशिया ज़रूरिया सरकारी निर्खों पर कहीं दस्तियाब नहीं है। अशिया ज़रूरिया के सरकारी दाम इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत सरकारी रेट लिस्टों के बरअक्स फरोख्त की जाने लगी। सब्ज मंडियों, पोश इलाकों और गली मोहल्लों में अशिया के मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। परचून में टमाटर 350, प्याज 140, लहसुन चाइना 400 रुपए फी किलो है। अदरक थाईलैंड 450, लीमू देसी और खीरा 260 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 420 और मेथी 300 रुपए फी किलो बेची जा रही है। सेब दर्जा अव्वल 450, आम चौंसा 420, आड़ू 300 रुपए फी किलो है। आलू बुखारा 500, अमरूद 300 और पपीता 400 रुपए फी किलो मिल रहा है। केले दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कोई चीज भी सस्ती नहीं रही। रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत महंगा है। गरीब आदमी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। रेट लिस्ट ही नहीं लगाई है। 200 से नीचे कोई सब्जी भी नहीं है। बहुत महंगाई हो गई है। गुजारा ही करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ। रेल लिस्ट जारी होती है। हाँ, मुझे रेल लिस्ट पे कुछ भी लेके दिखा दें। टमाटर लेके दिखा दें रेल लिस्ट पे। टमाटर रेल लिस्ट पे 200 है और इनके पास 400 रुपये है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके मुताबिक नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। वो भी अपनी जगह पे ठीक है। मंडी में रेट तेज़ है, कोई मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी तो गरीब, कोई सब्जी 200 से नीचे नहीं है। गरीब के पूंछ से दूर हुई है, हर चीज़ दूर हुई है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 21 रुपए कमी से 454 रुपए मुकर्रर की गई है। साफी ब्रायलर गोश्त 520 रुपए फी किलो मिल रहा है। फार्मी अंडे 268 रुपए फी दर्जन हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। LPG माफिया की खुलेआम लूटमार जारी है। ओगरा ने भी गैस 13 रुपये फी किलो मजीद महंगी करके आवाम की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में कहीं भी सरकारी रेट पर LPG मैसर नहीं। गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से LPG माफिया खुशहाल, आवाम शदीद परेशानी का शिकार। ओगरा ने भी गैस 13 रुपये फी किलो मजीद महंगी करके शहरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। LPG की रवा माह के लिए नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। शहर भर में कहीं भी LPG ओगरा की नई कीमत पर भी दस्तयाब नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में सिलेंडर गैस 380 से 430 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। ओगरा और दीगर इंतजामी इदारे LPG की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। सारिफीन का कहना है कि घरों में गैस नहीं आती, इसलिए LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। कोई 400 बेच रहा है, कोई 450 बेच रहा है। और सवारी कहती है पैसे किस लिए, हमने बढ़ाई गैस। वो एक ही जवाब देते हैं, गैस बढ़ाई तो हमने बढ़ाई है। वो तो किराया नहीं देते। हमारी तो इतनी परेशानी है कि हम अपने घर का खर्चा नहीं चला सक रहे। कोई 400 रुपये दे रहा है, कोई 450 दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। इस वजह से सवारी भी किराए, जब सवारी से किराया मांगते हैं सवारी किराया नहीं खर्च रही है। शहरियों का कहना है कि LPG की कीमतें मुसलसल बढ़ने के बायस घर में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत LPG माफिया के गिर्द घेरा तंग करे। कैमरामैन फैसल खान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن کا اجلاس، تاجروں نے مسائل اجاگر کیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید احتجاج، ڈی سی کی کریانہ ریٹ لسٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن کا اجلاس ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ملک غلام عباس کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر اور سابق رکن صوبائی اسمبلی مرزا جاوید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے پیٹرولیم مصنوعات کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شدید تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا کہ کاروباری اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کی جانے والی کریانہ ریٹ لسٹ کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا مطالبہ ہے۔ اجلاس میں چودھری محمد اسلم، شیخ ریاض، شیخ عظیم صابر حسین اور رانا وسیم سمیت دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔